समझे पढ़ना, जैसे एवरेस्ट चढ़ना, अकेले जंग लड़ना, I can't take it। अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। बेस्ट टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ना इजियर होगा। एग्जाम में हो लाइफ, अब से हर स्टूडेंट विनर होगा। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो Vedantu, learn live online. To attend a free live class, download the app now. Hello everyone, how are you doing? कैसे हैं आप सब लोग? So again we are back with another episode on our NEET crash course and today we are going to do the friction. Okay, friction chapter करेंगे. We'll be solving some questions, we'll be doing some theory also. Again this chapter is very important और अच्छे problems पूछे जाते हैं यहाँ से, right? So with your permission, let's start. Before that, slide of introduction. So those who are seeing me for the first time, my name is Gaurav Gupta. I did my engineering from NIT Rourkela and I have cleared this GATE exam with 99.5 percentile and I have taught and mentored 5,000 plus students. And we are here with this NEET crash course just because of your love that you have shown towards Vedantu. चलो guys, so are we geared up for this? Let me know in the chat box. तैयार हैं क्या हम लोग? चलो शुरू करते हैं. Great. Start करते हैं. First of all, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, द वेदांतु ऐप, राइट? सो इफ यू हैव नॉट इंस्टॉल दिस ऐप टिल नाउ, प्लीज इंस्टॉल इट. बहुत ज्यादा यूजफुल होगा. यू विल बी हैविंग द डाउट्स, फ्री डाउट्स, स्टडी मटेरियल, क्लासरूम रिसोर्सेज और इस सेशन के पीडीएफ्स भी यू विल बी गेटिंग इन दैट ऐप ओनली. ओके, सो प्लीज इंस्टॉल दिस ऐप. राइट नाउ इट इज अवेलेबल फॉर योर एंड्रॉइड. Also, please like, share and subscribe to the channel of Vedantu NEET Preparation. Okay? चलो guys, शुरू कर लेते हैं क्लास हमारी. Right? Are we geared up for this? चलो, great. हम करने वाले हैं आज friction, right? We are going to do this friction topic. I have already made one video before this on Newton's laws of motion. तो friction उसी से related होगा. All the laws of motion will be required here. So if you have not seen the video yet, please do watch that video. And then come back here and watch this also. Okay? चलो great. देखते हैं friction. So we know, मतलब वो relative motion को oppose करता है. Those definitions we know already, right? So we are not going into that much detail. शुरू करते हैं सीधे types of friction से. Two types are there, kinetic and static. So we say then that when two bodies are having some relative motion between them, and then the friction which is acting is kinetic friction, है ना? अगर relative motion हो रहा है तो What is the formula for kinetic friction? कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? This is the formula. Kinetic friction force is given by mu k into n. n क्या है यहाँ पे? Normal force acting on the surface, contact surface. एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. Let's say there is some block resting on this plane, है ना? कोई ब्लॉक है, इस प्लेन पे ऐसे रखा हुआ है. And let's say this mu k is known as what? Coefficient of kinetic friction. Let's say इसका वैल्यू है कुछ 0.3. is the value of this kinetic friction and let's say mass of this block is 10 kg. 10 kg इसका mass हो गया. Then what is the normal force between these two surfaces? Block जो surface पे लगाएगा that will be m into g, right? क्योंकि इसका weight नीचे लग रहा होगा mg and upwards normal force will be equal to m into g assuming g as 10. 10 जा 100 तो friction force क्या हो जाएगा? 0.3 which is our mu के value into normal force which is 100 तो 30 न्यूटन, है ना? सिंपल थिंग. फ्रिक्शन फोर्स आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला. इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है काइनेटिक फ्रिक्शन में. ओके, आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, है ना? there is tendency of motion but friction is able to resist that relative motion. वो motion होने नहीं दे रहा. Okay, so in that case the friction that acts is known as static friction. देखो ध्यान से, definition आपको already पता है, right? Exists between two surfaces when there is tendency of relative motion but relative motion is not happening at that point of time. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे लिखी हुई है, दैट इट इज वेरिएबल एंड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, और इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होता है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला F max इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम, जहां पे म्यू एस क्या है?
कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के क्या था, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आर वी क्लियर ऑन दैट गाइस? इसमें कोई डाउट है नहीं, राइट? बट यस, देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस, मतलब अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं उसको, राइट? इट विल बी वेरी यूजफुल। तो म्यू एस इंटू एन ध्यान से देख लो। वन मोर थिंग, द वैल्यू ऑफ म्यू एस, द स्टैटिक फ्रिक्शन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। ये भी हमें पता होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है कोफिशिएंट का, दैट इज ऑलवेज मोर देन म्यू के। वी आर नॉट गोइंग इनटू थ्योरी क्यों होता है एंड ऑल, राइट? राइट नाउ वी कैन जस्ट रिमेंबर दिस, म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के। आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स डू दिस स्मॉल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम भी नहीं है ये, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ओके? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि क्या आंसर है, ओके? देयर इज अ ब्लॉक प्लेस्ड हियर, कोई ब्लॉक रखा हुआ है, मास इज 10 kg, 10 kg का ब्लॉक है, म्यू एस वैल्यू इज गिवन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन 0.5, और हमने इस पे एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। वी हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टू मूव दिस ब्लॉक। देखते हैं मूव होगा नहीं होगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, इजंट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, माय क्वेश्चन टू यू हियर इज जस्ट फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी अप्लाइड बाय दिस सरफेस ऑन द ब्लॉक। फ्रिक्शन फोर्स बताओ, एनी आंसर? प्लीज लेट मी नो, आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स। हाँ बताओ, इसका आंसर क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स विल बी हाउ मच? अच्छा, आई कैन सी मेनी आंसर्स एज 50 न्यूटन, कि 50 न्यूटन होगा फ्रिक्शन फोर्स। आपने क्या किया? यू यूज दिस फॉर्मूला जो पिछले अभी इसमें ये वाला पढ़ा था, राइट? म्यू एस इंटू एन। तो एफ मैक्स इज म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना दिया हुआ है? 0.5। नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? 100, है ना? 100 नॉर्मल फोर्स इज 100 बिकॉज 10 kg का मास है। 10 इंटू 10 mg वही होगा ना भाई, m इंटू जी, 10 इंटू 10 100, तो इंटू 100, तो आपने ये आंसर दे दिया 50 न्यूटन। ठीक है, कुछ लोगों ने 50 दिया, कुछ लोगों ने कुछ और भी दिया है, आई कैन सी दैट। अब ध्यान से देखना, एक सवाल पूछता हूं मैं, फ्रिक्शन फोर्स विल बी एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द टेंडिंग मोशन, राइट? दिस ब्लॉक इज ट्राइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, तो ये जो सरफेस होगा वो ब्लॉक पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, एंड फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो हमने क्या बोला? ये फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 50। मतलब अभी इस पे कमेंट नहीं करेंगे हम, ये आंसर आया है कुछ तो, ये फॉर्मूला जो था दिया था उससे कुछ तो आंसर आया 50। बट देयर इज अ ट्विस्ट, आई एम ट्राइंग टू पुश दिस ब्लॉक विथ 10 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। इज इट इवन पॉसिबल दैट फ्रिक्शन विल पुश विथ 50 न्यूटन? मतलब नेट फोर्स कहां आ गया? आई एम पुशिंग विथ 10 एंड फ्रिक्शन इज पुशिंग विथ 50, मतलब क्या ब्लॉक इस तरफ जाएगा? नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट? प्रैक्टिकली बिल्कुल रॉन्ग है ये। आई एम ट्राइंग टू पुश इन दिस डायरेक्शन, ब्लॉक वापस आ रहा है 50 न्यूटन के साथ, मतलब 40 न्यूटन का नेट फोर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये मिस्टेक आप करते हो, डोंट कमिट दिस मिस्टेक। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, दिस इज द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लगा सकता है किसी भी सरफेस पे, राइट? बट बेस्ट थिंग इज फ्रिक्शन नोस फिजिक्स, उसको पता है कितना फोर्स लगाना है। ही नोस दैट माई मैक्सिमम वैल्यू, माई कैपेसिटी is 50 Newton, but he will see how much we have applied, 10 Newton only. Oh, this he can easily overcome. He can easily overcome, and he just have to apply, the friction just have to apply not 50 Newton but 10 Newton only, because it wants to eliminate the relative motion, right? Friction wants that contact should remain, this should not move. So if you are applying 10, friction will also apply 10. Why there is a need to apply 50? Are you getting my point? तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम इज 50, बट हियर द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन 50। फिर से बोलता हूं मैं, देखना, हमने कितना लगाया था 10, फ्रिक्शन कितना लगा सकता है 50, बट ही विल नॉट अप्लाई 50, इट विल अप्लाई ओनली 10। ठीक है, एक और लॉजिक है इसमें, देखो, लेट्स से यू आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगाया, जीरो फोर्स, तो फ्रिक्शन कितना लगाएगा? जीरो। फ्रिक्शन व्हाई इट विल एक्ट, ही नोज द फिजिक्स, राइट? तो यहां पे उसकी जरूरत ही नहीं है, तो इट विल अप्लाई जीरो। इससे क्या समझ में आता है? व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज, इफ आई अप्लाई अ फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है, ओके? कैपिटल एफ इज द अप्लाइड फोर्स एंड स्मॉल एफ इज द फ्रिक्शन फोर्स। ध्यान से समझना, इफ आई अप्लाई जीरो फोर्स, फ्रिक्शन विल ऑल्सो अप्लाई जीरो फोर्स। इफ आई अप्लाई 10, फ्रिक्शन विल अप्लाई 10। अगर मैंने 20 लगाया, फ्रिक्शन ऑल्सो 20। इफ यू विल अप्लाई लेट्स से 45, friction will also apply 45, but now it will be slightly worried, right? Because its maximum value is 50.
अब तुम उसके काफी क्लोज आ रहे हो. यू आर गोइंग टू ट्रबल द फ्रिक्शन, इजंट इट? यू आर गोइंग टू अप्लाई क्लोज टू 50. अब उसकी हालत खराब होनी शुरू हो जाएगी. अब देखना ध्यान से, अब क्या होगा? इफ यू अप्लाई 49.999, बहुत सारे 9, ओके, स्टिल फ्रिक्शन विल बी अलाइव. ही विल ऑल्सो अप्लाई सेम फोर्स 49.999, बट now he is going to die, isn't it? Because maximum that he can apply is only 50. If you will apply 50.0001, 50 से आप जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गए, friction will not be able to keep this block stationary. This block will start moving with some acceleration, है ना? And the friction will not be static now, it will become kinetic friction. क्या हो जाएगा वो? काइनेटिक फ्रिक्शन. तो अगर आपने फोर्स लगा दिया 50 से ज्यादा, इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन की डेथ हो गई, गया ये. ओके, एंड देन हु विल कम, हु विल अप्लाई द फ्रिक्शन नाउ? काइनेटिक फ्रिक्शन. लेट्स से म्यूएस कितना लिया था? 0.5, राइट? म्यू के ले लेते हैं 0.3, बिकॉज ऑलवेज म्यू के इज लेस, इजंट इट? म्यू के ले लेते हैं 0.3. तो म्यू के, अब यहां पे कितना लिखो फ्रिक्शन फोर्स? ध्यान से देखना. आफ्टर अप्लाइंग 50 से ज्यादा फोर्स, इट हैज बिकम काइनेटिक. क्या मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेना चाहिए? यस. हाउ मच इज काइनेटिक फ्रिक्शन? द लाइफ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज वेरी सिंपल. ओके, ही इज अ वेरी सिंपल गाय. सिंपल फॉर्मूला इज देयर, म्यू के इंटू एन. इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है. कांस्टेंट वैल्यू ही विल अप्लाई. हाउ मच इज द कांस्टेंट वैल्यू? 0.3 टाइम्स 100, यानी कि 30 न्यूटन, है ना? तो अब जो फ्रिक्शन हो गया यहां पे, दैट इज जस्ट 30 न्यूटन. ओके, अगर आपने फोर्स 50 से ज्यादा लगा दिया, इट विल बी मूविंग. और फोर्स कितना लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स 30 न्यूटन. नाउ इफ यू वांट एक्सेलरेशन, आसानी से निकाल सकते हो, राइट? इस तरफ आपने लगाया 50 से ज्यादा, लेट्स से 55. इस तरफ क्या लग रहा है? 30, कांस्टेंट वैल्यू, है ना? तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द मास हो जाएगा, इजंट इट? तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड, यू कैन से. यहां से फ्रिक्शन का सारा बेसिक क्लियर हो सकता है. ओके, चलो ध्यान से देखते हैं एक और चीज. हमने क्या देखा? स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को चेंज कर रहा था, राइट? 0, 10, 20, 45, और फ्रिक्शन भी उसके साथ साथ चेंज होता जाता है, isn't it? जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स चेंज हो रहा था. कब तक? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक. तो इसका एक ग्राफ होता है, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स का, विच वी शुड नो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ध्यान से देखना, ये है उसका ग्राफ. ओके, देखो, इनिशियली दिस इज व्हाट अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज व्हाट फ्रिक्शन फोर्स. इनिशियली व्हेन अप्लाइड फोर्स इज 0, फ्रिक्शन फोर्स कितना था? 0. तो 0,0 से शुरू हो गया. व्हेन अप्लाइड फोर्स इज 10, फ्रिक्शन इज आल्सो 10. मतलब अगर यहां पे ये वैल्यू 10 है, तो ये वैल्यू भी 10 हो गया. ये 45 डिग्री का स्लोप चलेगा, है ना? ऐसे लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप हो जाएगा इसका 1, क्योंकि दोनों इक्वल है. एट दिस पॉइंट यहां पे आ जाता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. मतलब उसकी वैल्यू क्या है? म्यूएस इंटू एन. इन अवर प्रॉब्लम दैट वाज 50. इसका वैल्यू 50 था. 50 याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है म्यूएस इंटू एन. प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम दैट विल चेंज, इजंट इट? अब ध्यान से देखना, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस? इफ यू अप्लाई अ फोर्स विच इज मोर देन म्यूएस इंटू एन, है ना? अगर फोर्स जो अप्लाइड है दैट इज मोर देन म्यूएस इंटू एन, काइनेटिक में चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो देयर इज अ स्मॉल बंप. अचानक से फ्रिक्शन कम हो जाता है यहां पे, एंड देन इट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट क्यों? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है, म्यू के इंटू एन, वो तो कांस्टेंट होता है ना? सिंपल सी बात. आर वी क्लियर ऑन दैट? दिस ग्राफ इज क्लियर. इनिशियली देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग आगे बढ़ता है, मैक्सिमम तक जाता है, देन वी हैव काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट, ये है फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन. टू एक्सप्लेन फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, आई हैव ड्रॉन दीज टू इंक्लाइन प्लेन्स. ओके, ध्यान से देखना, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लेट्स से दिस इंक्लाइन प्लेन हैज सम एंगल थीटा. ठीक है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका एंगल है थीटा. दिस इज ऑल्सो सेम इंक्लाइन प्लेन, एंगल इज थीटा. ये रेड जो है इसका मतलब है दिस इज रफ. ठीक है, ये वाला जो सरफेस है दैट इज रफ. ओके, ये जो लाइट कलर है ब्लू टाइप्स, है ना, इसका मतलब है स्मूथ. सो देयर आर टू सरफेसेस, वन इज रफ एंड दिस वन इज स्मूथ. ओके, अब देखो, लेट्स से अ ब्लॉक इज केप्ट हियर एट द सेम हाइट, अ ब्लॉक इज केप्ट हियर ऑल्सो. ठीक है, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट दीज ब्लॉक्स आर स्लाइडिंग. स्लाइडिंग मतलब ऐसे नीचे आ रहे हैं विथ सम एक्सेलरेशन a. तो ये भी कितने से नीचे आ रहा है? मान लो सम एक्सेलरेशन a डैश. अलग अलग एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि फ्रिक्शन है और यहां पे फ्रिक्शन नहीं है. दैट आई विल बी टेलिंग कि कितना आएगा, राइट?
अब ध्यान से देखना, जस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन. mg विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, है ना, वेट ऑफ द बॉडी विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स. एक फोर्स इस तरफ आ जाता है, दैट इज mg sin थीटा. आई थिंक यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट, आई मीन हाउ टू नो द टू कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स, राइट, कंपोनेंट्स ऑफ द वेट. ये एंगल हो जाएगा थीटा. mg का ये वाला कंपोनेंट इट इज mg sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट mg का इट इज mg cos थीटा. ये सबको आता है क्या निकालना कंपोनेंट? गुड. This will be the normal force because normal force is always perpendicular to the surface, right? तो normal force. यहां से you can tell that normal force should be equal to mg cos theta. तो इस केस में normal is not equal to mg, it is equal to mg cos theta. पहली बात. दूसरा, acceleration if I want, there is no friction, right? तो मैं क्या बोलूंगा, देखो इस डायरेक्शन में whatever is net force should be equal to m into acceleration. F equal to ma लगा रहा हूं मैं, है ना, सेकेंड लॉ. तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है? mg sin थीटा इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. तो मास इंटू ए, m और m कैंसल, ये कितना आ गया? g sin थीटा, है ना. तो एक्सेलरेशन इन दिस केस इज g sin थीटा. इस केस में क्या हो जाएगा देखना ध्यान से. अगेन नॉर्मल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, mg cos थीटा यहां पे आ गया, है ना. दिस इज mg cos थीटा. आई एम अज्यूमिंग दैट दिस इज स्लाइडिंग, ये स्लाइड हो रहा है, ऐसा मैंने अज्यूम किया. तो देयर विल बी अ काइनेटिक फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन, है ना, f के काइनेटिक फ्रिक्शन. इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा तुम्हारा? mg sin थीटा, दैट वी ऑलरेडी नो, है ना, वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा. आई एम नॉट ड्राइंग mg बिकॉज आई हैव टेकन द टू कंपोनेंट्स. अब ध्यान से देखना, व्हाट इज एक्सेलरेशन. इन फर्स्ट केस देयर वाज ओनली वन फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दैट वाज mg sin थीटा, बट हियर वी हैव mg sin थीटा आल्सो, एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स आल्सो. फ्रिक्शन फोर्स विल बी हाउ मच? इंटरेस्टिंग है, देखो फ्रिक्शन फोर्स विल बी हाउ मच? म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स. म्यू ले लेते हैं, म्यू ओनली, चलो. कोफिशिएंट फ्रिक्शन इज म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स कितना है? mg cos थीटा. ये मिस्टेक मत करना, mg मत लिख देना, ओके. सो म्यू mg cos थीटा, ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना. नाउ इफ आई वांट टू राइट डाउन दिस, f इज इक्वल टू ma अलोंग द इंक्लाइन. देखना ध्यान से, mg sin थीटा डाउनवर्ड्स, लेट्स टेक दैट एज पॉजिटिव. तो क्या हो गया? mg sin थीटा माइनस ये अपवर्ड्स वाला फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स. कितना है वो? म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए. आप ध्यान से देखो, मास कैंसिल हो जाएंगे, मास 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 गॉन. एक्सेलरेशन कितना आ गया? g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा. यू कैन इवन टेक द g कांस्टेंट, इट विल बिकम sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इंटू g. Are we clear on that? I'm going to do excellent problems on inclined plane, and that's why I'm telling you the theory first, okay? समझ में आ गया क्या ये दोनों? So if it is smooth plane, acceleration is just g sin theta, but if it is rough, then it is g sin theta minus mu g cos theta. ठीक है, समझ में आ गया guys? चलो, let's move ahead. Theory is done now, okay? Those who are waiting for MCQs, अब हम शुरू करते हैं MCQs के साथ. चलो, let's move ahead guys. Yes, first problem, easy one. Please tell me the answer. Anyone with the answer, guys? चलो कोई नहीं, देखते हैं. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक, राइट. देखो ध्यान से देखना अब. नाउ यू कैन रिलेट. स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है मुझे μs बिटवीन ब्लॉक A एंड द टेबल, है ना. यहां पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है μs, दैट इज गिवन एज 0.2. हाँ, 0.2 दिया हुआ है. एंड मास ऑफ ब्लॉक A इज हाउ मच? 2 kg. ये कितना दिया हुआ है? 2 kg. Now he is saying what will be the maximum mass value of block B so that the two blocks do not move. इसका मैक्सिमम मास कितना ले लूं कि ये मूव ना करे पूरा सिस्टम, है ना. ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, दो इट इज वेरी इजी. सो दिस मास m, the weight of this block B, it will try to pull the string, है ना, and it will try to pull the block A. Who will stop that? Who will stop the block A from going in this direction? Friction, obviously. We have to stop it, right? We have to stop this from moving. मतलब friction कौन सा होना चाहिए? Static. अच्छा, maximum mass is saying, maximum mass of this. मतलब क्या friction की एकदम हालत खराब कर देनी है? Yes. उसका मतलब क्या है? Friction should apply its maximum value. तो static का maximum value क्या होता है? We know that already. mu s into n, है ना. इतना मास रख दो इसमें कि फ्रिक्शन की हालत खराब हो जाए. मतलब थोड़ा सा भी मास उससे बढ़ा दिया, देन इट विल जस्ट स्लाइड. गेटिंग माय पॉइंट? अब देखना ध्यान से, हाउ मच इज द मास? 2 kg.
तो यहां पे जो नॉर्मल फोर्स आएगा गाइस, नॉर्मल फोर्स विल बी m इंटू जी, 2 इंटू जी दैट इज 20, है ना, 20 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एफ मैक्स, म्यूएस इंटू 20, म्यूएस इज 0.2, 0.2 इंटू 20, 4 न्यूटन। मतलब द मैक्सिमम फोर्स दैट फ्रिक्शन कैन अप्लाई इज 4 न्यूटन। सो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेट ऑफ बी, 4 न्यूटन ओनली। तो मास कितना हो जाएगा बी का, mg इज इक्वल टू 4 न्यूटन, तो m इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई g, g को 10 ले लेते हैं, आंसर विल बी 0.4 kg। ओके, सिंपल प्रॉब्लम, राइट। चलो गॉट इट, आगे बढ़ जाते हैं। करेक्ट आंसर इज 0.4 kg। लेट्स मूव अहेड दिस क्वेश्चन, लेट्स ट्राई दिस वन नाउ। ये क्या बोल रहा है कि हाँ, 3 ब्लॉक्स आर देयर, m1 m2 एंड m3, है ना, कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली p। द मास m1 हैंग्स फ्रीली, ये है फ्रीली हैंग कर रहा है, एंड देन 2 masses आर देयर, m2 एंड m3 प्लेस्ड ऑन द टेबल। ओके, अच्छा, और ये टेबल रफ है, राइट, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज म्यू। अच्छा, इसमें बताया नहीं है ना कि स्टैटिक है या काइनेटिक है, वी विल अंडरस्टैंड दैट कौन सा है, ठीक है, पता चल जाएगा। पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास, द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज, मतलब इसका कुछ एक्सेलरेशन है m1 का a। इफ दिस इज हैविंग सम एक्सेलरेशन, स्ट्रिंग के साथ जो भी मास कनेक्टेड है, एवरीथिंग विल हैव सम एक्सेलरेशन a, है ना, सब एक साथ जाएंगे ना, ऐसा थोड़ी है m1 नीचे चला जाएगा एक्सेलरेशन a से और बाकी बैठ के देख रहे हैं, दे आर कनेक्टेड विद स्ट्रिंग, राइट। तो सब पूरा सिस्टम जा रहा है 3m मास का। अब देखना ध्यान से, ही इज आस्किंग व्हाट, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1, यही a निकालना है मेरे को। अब ध्यान से देखना, ऑल आर हैविंग मास m, तो यहां से कितना फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड्स, mg, है ना, यहां से कितना फोर्स लग गया, mg, एंड दिस सरफेस इज रफ, बेसिकली रफ है सरफेस। तो अगर ये इस तरफ जाना चाह रहे हैं, दिस ब्लॉक्स आर ट्राइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन विथ सम एक्सेलरेशन a, देयर शुड बी अ फ्रिक्शन फोर्स हियर एंड ऑल्सो देयर शुड बी अ फ्रिक्शन फोर्स हियर, ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। और वो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू एन। अब ये काइनेटिक का केस है क्योंकि पूरा सिस्टम स्लाइड हो रहा है, दो ही हैज नॉट मेंशन्ड, हमें ज्यादा सोचना नहीं है, काइनेटिक है, यू विल जस्ट राइट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एन कितना हो जाएगा, एम इंटू जी, नॉर्मल फोर्स इज जस्ट एम इंटू जी, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू एम जी। और इसके लिए भी क्या फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी, यस एग्जैक्टली, सेम मास सेम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई, बिकॉज 2 ब्लॉक्स आर देयर एंड फ्रिक्शन इज एक्टिंग एट 2 डिफरेंट सरफेसेस, है ना, यहां पे भी काम कर रहा है और यहां पे भी फ्रिक्शन है। अब देखो, दैट मीन्स इन दिस सिस्टम देयर इज अ फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg एंड देयर इज अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन म्यू mg इंटू 2, है ना, नेट फोर्स इज दिस मच, दिस माइनस दिस। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, व्हाट विल आई डू, एक्सेलरेशन इज एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास, है ना, मास टोटल। कल भी एक फॉर्मूला मैंने बताया था पुली वाले सिस्टम में, है ना, m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, वो भी वही है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अब देखो नेट फोर्स कितना है, mg माइनस दिस, क्या मैं mg को कॉमन ले लेता हूं, है ना, आसानी से ले सकते हैं, mg कॉमन 1 माइनस ये क्या बच जाएगा 2 म्यू डिवाइडेड बाई टोटल मास विच इज 3m, है ना, ये आ जाएगा। अब देखो m और m हो गए कैंसिल, यू विल गेट द करेक्ट आंसर एज g माइनस 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दैट, आसान है ना, यहां का फोर्स नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। ठीक है, ग्रेट, चलो आगे बढ़ जाते हैं। वी हैव सम अमेजिंग प्रॉब्लम्स, यस दिस वन वेरी गुड प्रॉब्लम, चलो ये ट्राई करते हैं। अब ध्यान से पढ़ना, ही सेज प्लैंक विथ अ बॉक्स ऑन इट, वन एंड ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड। देखो एक प्लैंक लिया है ना, यहां पे कुछ ऐसे लिया है, एक इंक्लाइन प्लेन और उस पर रखा है एक प्लैंक, ऐसे कोई प्लैंक रखा हुआ है उस पर, राइट। सो फर्स्ट इट वाज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऐसे था हॉरिजॉन्टल पे। यू कैन सी व्हेन इट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऐसे प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन नहीं है, देन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग विच विल स्लाइड दिस पेन इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन। कोई भी फोर्स लग रहा है क्या, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। इफ यू स्लाइटली इंक्रीज दिस एंगल, है ना, देखो कैसे इंक्रीज किया इसको, इस डायरेक्शन में ऐसे, इफ यू स्लाइटली इंक्रीज द एंगल, कुछ फोर्स लगेगा इस पेन पे एंड दैट विल स्लाइड, इजंट इट। तो इनिशियली दैट वाज नॉट स्लाइडिंग, फॉर सम एंगल दैट इज नॉट स्लाइडिंग, बट आफ्टर सम एंगल देखना ये स्टार्ट शुरू हो गया, है ना, स्लाइड करना शुरू हो गया। ये कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज, दिस इज अ टॉपिक, राइट, फ्रिक्शन में। तो द एंगल इन विच at which the block starts to slide down, that is known as angle of repose.
चलो ठीक है, समझते हैं, बेसिक से समझते हैं। अच्छा, ये स्लाइड होना क्यों शुरू हो गया इंक्लाइन प्लेन पे? बिकॉज देन देयर इज अ फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, mg sin theta. Initially this force would have been very less. When the angle of inclination is very less, इतना ही है मान लो, then this angle will be very less, है ना? एंगल कम तो फोर्स भी कम था, तो फ्रिक्शन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। The moment you will increase the theta and the moment this force mg sin theta will become equal to the maximum value of friction force, ध्यान से सुनना, जब ये फोर्स फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाएगा, देन स्लाइडिंग विल स्टार्ट, है ना? तो जहां पे स्लाइडिंग स्टार्ट होगा एट दैट एंगल, कैन आई से एट दैट एंगल ये जो फोर्स होगा इस तरफ mg sin थीटा, थीटा मुझे दिया हुआ आई थिंक राइट 30 डिग्री, इट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू fs मैक्स। fs मैक्स क्या है? स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू, है ना? एंड आफ्टर दैट दिस ब्लॉक विल स्टार्ट टू स्लाइड। दिस इज जस्ट दैट सिचुएशन, हमने जैसे 30 पे लेके आए, वो स्टैटिक था और उसके बाद स्लाइड करना शुरू कर दिया, राइट? एट दिस सिचुएशन आई कैन जस्ट इक्वेट दीज टू फोर्सेस। ये समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि यहां पे अभी ये स्टैटिक है, राइट? इसके बाद स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। तो एट दिस सिचुएशन आई कैन राइट fs max which is how much? μs into mg या mg cos theta, mg cos theta याद करो, अभी थ्योरी में मैंने बताया था कि द नॉर्मल फोर्स इज नॉट mg इन दिस केस, इट इज mg cos theta। तो μs into mg cos theta should be equal to, है ना, μs into n should be equal to mg sin theta। ये स्टैटिक का केस, यहां तक ब्लॉक स्टैटिक है, ठीक है? इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, दोनों एकदम बराबर बराबर निकले, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, m और m कैंसिल, है ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ μs फ्रॉम हियर? देखो g भी कैंसिल हो गया, μs विल बी इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज tan थीटा। और थीटा कितना है यहां पे? 30 डिग्री, 30 डिग्री है ना थीटा, तो tan 30 1 अपॉन रूट 3, it will be approximately 0.5777, but that you can take as 0.6। तो यहां से अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा इक्वल टू 0.6 μs का वैल्यू। जल्दी से रिवाइज करा देता हूं मैं, ये क्या किया मैंने? 30 डिग्री पे ही सेइंग इट स्टार्ट्स टू स्लाइड, मतलब यहां तक स्टैटिक रहा होगा, है ना? स्टैटिक के केस में mg sin थीटा शुड बी बैलेंस आउट बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया? ग्रेट। अब देखो उसके बाद क्या बोलता है वो, आफ्टर दैट, मतलब उसी एंगल पे 30 पे पहले स्टैटिक था, फिर स्लाइड कर रहा है। इट स्लिप्स एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखना ध्यान से। वी कैलकुलेटेड द स्टैटिक वन, है ना? स्टैटिक के लिए कुछ भी नहीं करना था, नेट फोर्स 0 कर दिया, बट आफ्टर दैट ही इज सेइंग ब्लॉक स्लिप करने लग गया। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज, यहां के बाद उसको स्लिप करना था, तो उसने स्लिप किया, 4 मीटर नीचे आ जाता है वो इन हाउ मच टाइम? 4 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से देखना, इस सिचुएशन को समझते हैं। सो नाउ ही इज सेइंग कि यहां पे जो ब्लॉक था, राइट, व्हेन द स्लिपिंग स्टार्टेड एट 30 डिग्री एंगल, व्हेन द स्लिपिंग स्टार्टेड, ये 4 मीटर ट्रेवल कर लेता है 4 सेकेंड में। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड। क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 था? यस, इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, राइट? ये तो ऐसा सीन था, ठीक है? अब देखना ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस इज गिवन, यहां पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा सबसे पहले तो ये बता दो। दिस फोर्स विल बी mg sin थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स, नाउ इट इज स्लाइडिंग, है ना? स्लाइडिंग है, तो क्या हो जाएगा? μk इंटू mg cos थीटा, पता है ना हमें ये। और इंक्लाइन प्लेन पे व्हेन देयर इज स्लाइडिंग, तो एक्सेलरेशन क्या निकाला था हमने? बताओ गाइस, वी जस्ट हैव सीन दैट राइट टुडे ओनली, मैंने कराया थ्योरी में, g sin थीटा माइनस μg cos थीटा, ये एक्सेलरेशन आ जाता है। सो विद दिस मच एक्सेलरेशन इट इज फॉलिंग, है ना? ये एक्सेलरेशन अगर मुझे मिल गया, दिस इज μk ऑब्वियसली, ये एक्सेलरेशन अगर मुझे मिल गया तो क्या मैं μk निकाल लूंगा? बिकॉज cos थीटा इज नोन, sin थीटा इज नोन। अब ध्यान से देखना व्हाट आई एम डूइंग। For acceleration only he has given this 4 meter and 4 second. Starting from 0 velocity with constant acceleration, I can use this formula. S is equal to ut, u 0 है, plus half a t square, है ना? Displacement कितना है? 4 मीटर equal to half into a time कितना? 4 4 जा 16। इसको सॉल्व करो, कितना आ गया? 8 divided by 16, that is acceleration is 1/2। इसीलिए दिया हुआ था 4 मीटर और 4 सेकेंड। Now just substitute this a in this equation. Acceleration 1/2, g का वैल्यू तुम्हें पता है, राइट? Sin थीटा sin 30 will be 1/2,
cos 30 विल बी √3/2। क्या सिर्फ एक अननोन है म्यू के, क्या वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम? यस, इफ यू कैलकुलेट दैट म्यू के फ्रॉम दिस इक्वेशन द आंसर फॉर म्यू के विल बी 0.5। करके देखना, ठीक है, कैलकुलेशन करके देखना, सिंपल थिंग ओनली। ये 1/2 हो गया एंड दिस वी ऑलरेडी नो राइट। एक्सेलरेशन का इक्वेशन मैंने आपको बताया था, व्हेन देयर इज अ फ्रिक्शन और ये स्लाइड हो रहा है तो एक्सेलरेशन इतना हो जाता है। ओके ग्रेट गाइस, तो जो करेक्ट आंसर आएगा, व्हाट इज दैट करेक्ट आंसर? ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ए 0.6 फॉर स्टैटिक एंड 0.5 फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलो गाइस ग्रेट, आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन इज परफेक्टली स्मूथ। एक इंक्लाइन प्लेन लिया उसने, अपर हाफ को स्मूथ रखा है बट लोअर हाफ इज रफ। ठीक है, हाफ ऑफ द पोर्शन इज स्मूथ, हाफ ऑफ द पोर्शन इज रफ। ही इज सेइंग अ ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन विल अगेन कम टू रेस्ट। ध्यान से देखना, जब उसने स्टार्ट किया तो वो रेस्ट पे था ब्लॉक, फाइनली फिर से वो रेस्ट पे आ गया एट द बॉटम। जैसे जैसे वो नीचे आया, राइट, एकदम नीचे आया तो फिर से रेस्ट पे आ गया। ही इज आस्किंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। देखो मैं एक बार फिर से डायग्राम के साथ तुम्हें क्वेश्चन समझाता हूं। सो व्हाट ही इज सेइंग, इनिशियली यहां पे एक ब्लॉक था, राइट, हियर देयर इज अ ब्लॉक, इट वाज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0, इट वाज एट रेस्ट इनिशियली। हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज स्मूथ। मान लेते हैं ये वाला लेंथ L है, तो ये लेंथ भी कितना हो जाएगा? L है ना, टोटल लेंथ 2L। L इज स्मूथ एंड L इज रफ। ये वाला जो रेड वाला है वो क्या है? रफ। ठीक है, अब देखना ध्यान से व्हाट ही इज सेइंग। ही इज सेइंग इट स्टार्टेड फ्रॉम 0 वेलोसिटी बट व्हेन इट केम डाउन आफ्टर रीचिंग हियर अगेन फाइनल वेलोसिटी लेट्स से v डैश वाज इक्वल टू 0। तो अगर दिस इज द सिचुएशन, फाइंड आउट हाउ मच इज म्यू। एक्सीलेंट क्वेश्चन, राइट, एक्सीलेंट क्वेश्चन। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, राइट। आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दिस? देखते हैं हाउ टू डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन देयर इज स्मूथ सरफेस, एक्सेलरेशन कितना है गाइस बताओ मुझे? जी साइन थीटा, है ना, जी साइन थीटा, ये तो आता है मुझे, है ना, सर ने करा दिया आज ही, ये तो आता है जी साइन थीटा। विथ जी साइन थीटा एक्सेलरेशन इट विल एक्सेलरेट अप टू दिस पॉइंट, जहां तक स्मूथ है यहां तक एक्सेलरेशन विल रिमेन जी साइन थीटा ओनली। लेट्स से द वेलोसिटी हियर बिकम्स v। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है यहां पे? v आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ l with a constant acceleration of g sin theta starting from rest. Can I find out this v? Obviously, simple kinematic equation. So this v square is equal to u square plus 2as. ये करते हैं ना, तो u square will be 0 plus 2as, मतलब 2a is g sin theta। देखो वहां पे ध्यान से, acceleration g sin theta है, into displacement कितना है गाइस? देखो l along the incline, है ना, मतलब यहां से मुझे मिल गई वैल्यू v स्क्वायर की विच इज 2g sin थीटा इंटू l। ये वाला वेलोसिटी मुझे पता चल गया, ठीक है, दिस v I got very easily. Now I'll apply the same equation between these two points. दो बार लगा रहा हूं मैं, राइट। पहले मैंने यहां पे लगाया इक्वेशन ऑफ v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. Now I am going to apply between these. In these two, this will become the initial velocity now. ये क्या बन जाएगा अब? Initial velocity and this will become final velocity. और फाइनल वेलोसिटी क्या मुझे पता है कितनी है? 0, है ना। व्हाट इज द इक्वेशन नाउ? देखना ध्यान से, द इक्वेशन विल बी दिस, v डैश स्क्वायर दैट इज फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर विच इज v स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल u नहीं है अब, इनिशियल इज v, तो v स्क्वायर प्लस 2as, है ना, 2 तो मैंने लिख लिया। एक्सेलरेशन आप बताओगे कितना होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट, ये रफ है, g sin थीटा नहीं होगा। Acceleration on the rough surface is g sin theta minus mu g cos theta। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, है ना। तो चलो यहां पे लिखते हैं, सो एक्सेलरेशन विल बी g sin theta minus mu into g cos theta। 2as होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अगेन इज l ओनली, तो यहां पे आप लिख लो l। और ये कितना है? v डैश स्क्वायर 0, है ना, v डैश स्क्वायर इज 0। अब देखो लेट्स सब्स्टिट्यूट फॉर v स्क्वायर। v स्क्वायर का वैल्यू कितना है? देखो 2g sin थीटा इंटू l। तो क्या लिखेंगे यहां पे? देखो आई एम राइटिंग 0 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, इक्वल टू 2g sin थीटा इंटू l प्लस ये 2 अंदर लेके जाओ, ये l भी अंदर लेके आओ, तो g sin थीटा इंटू 2 इंटू l हो जाएगा, यानी कि अगेन 2g sin थीटा इंटू l माइनस अगेन दिस 2 एंड l विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म, है ना,
तो ये कितना बन गया देखो 2 म्यू जी कॉस थीटा इंटू एल। डन। अब देखो यहां से क्या मिल रहा है मुझे, ये दोनों क्या बन गए जुड़ के 4g साइन थीटा इंटू एल, 4g साइन थीटा इंटू एल, और ये उस साइड चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा इक्वल टू 2 म्यू जी कॉस थीटा इंटू एल। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, g और g कैंसिल हो रहे हैं, l और l कैंसिल हो रहे हैं, isn't it? And what do we want? म्यू। तो देखो म्यू कितना आ जाएगा, ये 2 विल कैंसिल दिस 4, ये 2 बन जाएगा, है ना। सो 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस टैन थीटा, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया 2 टैन थीटा। ऑसम क्वेश्चन, राइट, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसमें उसमें स्मूथ भी ले लिया और रफ भी ले लिया। ओके, समझ में आ गया ना सभी को? चलो गाइस, ग्रेट। करेक्ट आंसर विल बी 2 टैन थीटा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लेते हैं जल्दी से। यस, ये वाला बी ऑप्शन है ना, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 टैन थीटा। आर वी क्लियर ऑन दैट गाइस? लेट मी नो। ग्रेट, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है, ब्लॉक बी इज पुश्ड मोमेंटरली अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v। एक ब्लॉक लो, बहुत आसान है ये देखो, और एक सरफेस लिया, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया इसे v, है ना। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्लाइडिंग, मतलब जब स्लाइड हो रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड देन ही इज सेइंग between B and the surface, yeah, block B will come to rest after a time. Okay, देखो initial velocity V given था मुझे, है ना, block was having some initial velocity. After some time t, इसका velocity कितना हो जा रहा है 0. It comes at rest. अच्छा, who is the culprit behind it? इसको rest पे कौन लेके आ रहा है? Friction uncle, right? Friction जो है, जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, that is bringing the velocity from V to 0. वो उसको रेस्ट पे लेके आ रहे हैं, isn't it? Now this is very easy question. देखो ध्यान से, the friction that is acting here, वो कितना हो जाएगा देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो that will be just mu k, जो हमें दिया हुआ है as mu into mg, है ना, mu into mg। इंक्लाइन तो है नहीं कि cos थीटा लिखूंगा, ये तो सिंपल सा है ना, mu into mg। अगर दिस इज द फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, then what is the acceleration provided by friction? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इसको मास से डिवाइड करो, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, इट विल बिकम म्यू इनटू जी। मतलब इतना एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक का इन दिस डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। अगर फोर्स इधर है तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा, तो दैट इज म्यू इनटू जी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे यहां पे, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टी, पता है ना ये इक्वेशन, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसने टाइम पूछा है, सो आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन। अगर उसने डिस्टेंस पूछ लिया होता कि कितना डिस्टेंस चल के रुकेगा, देन आई वुड हैव यूज्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कुछ भी पूछ ले निकाल सकता हूं मैं, राइट, आई नो दिस। अब देखो ध्यान से, फाइनल वेलोसिटी हैज टू बिकम 0, इनिशियल वेलोसिटी इज v, है ना। इनिशियल, चलो v में कंफ्यूज मत होना, यहां पे v मैंने फाइनल के लिए यूज किया था, बट ही इज गिवन इनिशियल एज v, तो मैं लिख रहा हूं इनिशियल एज v, ठीक है। प्लस या माइनस, एक्सेलरेशन इस तरफ है, माइनस लिख लो, तो माइनस म्यू जी। माइनस क्यों लिखा समझ में आया क्या? वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, तो माइनस हो जाएगा इनटू टी। तो क्या मिल जाएगा यहां से, v इज इक्वल टू म्यू जी इंटू टी, तो t क्या आ गया, v डिवाइडेड बाई म्यू इंटू जी, हो गया आंसर। ओके, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? t इज इक्वल टू v बाई म्यू जी, दैट इज d। ओके, ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू। यस, दिस वन देखो ध्यान से, अ कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। कन्वेयर बेल्ट समझ में आता है ना, यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मतलब प्लांट के अंदर एक बेल्ट होता है, पुट एनी ऑब्जेक्ट, वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा, राइट। सो दैट इज अ बेल्ट, मूविंग बेल्ट समझ लो। तो 2 मीटर पर सेकंड से ये बेल्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड। नाउ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट, एक बॉक्स लिया है ना, जिसको मुझे ट्रांसपोर्ट कराना है यहां से कोई और पॉइंट पे, उसको जेंटली यहां पे रख दिया। जेंटली ड्रॉप्ड मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉक्स का, दैट इज 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स इज 0। इसको यहां पे आपने धीरे से रख दिया, देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन, नो वन कैन स्टॉप दैट इनिशियली। ये रेस्ट पे है, आप मान लो रेस्ट पे हो और कोई चीज चल रही है, उसके ऊपर कूद जाओ, इनिशियली यू विल बी स्लाइडिंग ओवर दैट, राइट। पहले स्लाइड हो गया आप खूब, बट उसके बाद इफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट,
देन फ्रिक्शन विल टेक दिस बॉक्स विथ इट, है ना, विद द कन्वेयर बेल्ट। समझ में आया क्या? तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विल बिकम 2 मीटर पर सेकेंड। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। जेंटली यू आर प्लेसिंग दिस बॉक्स, इट इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 0, बेल्ट इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली देयर विल बी सम स्लाइडिंग इन बिटवीन देम, राइट? इनिशियली ये रेस्ट पे है, अचानक से एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे गिर गया ये, तो ऑब्वियसली देयर विल बी स्लाइडिंग, बट देन फ्रिक्शन विल वर्क हार्ड एंड इट विल मेक रिलेटिव मोशन 0 बिकॉज फ्रिक्शन एक फोर्स यहां पे एक्ट कर रहा है, राइट? अब देखना ध्यान से, व्हेन दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट और बेल्ट इस तरफ मूव कर रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन फ्रिक्शन विल एक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है, इन व्हाट डायरेक्शन फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन द बॉक्स। क्या ये बेल्ट बॉक्स को पीछे ढकेलेगा या आगे? दिस बेल्ट विल कैरी दिस बॉक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? तो यहां पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। स्टिल इट इज ट्राइंग टू अपोज द रिलेटिव मोशन, क्योंकि रिलेटिव मोशन कैसा था? दिस कन्वेयर बेल्ट वॉज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द बॉक्स। तो फ्रिक्शन कन्वेयर बेल्ट पे किधर लगेगा? इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना? फ्रिक्शन विल ट्राई टू अपोज द मोशन ऑफ कन्वेयर बेल्ट। तो अगर कन्वेयर बेल्ट पे फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, देन ऑन द बॉक्स इट विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज अ कंडीशन ऑफ पॉजिटिव वर्क डन बाय फ्रिक्शन। यहां पे पॉजिटिव वर्क डन आता है ऑन द बॉक्स, क्योंकि फ्रिक्शन इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ। चलो लीव अबाउट दैट, अभी तो प्रॉब्लम कर लेते हैं। आर वी क्लियर ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? समझ में आ गया है? अब ध्यान से देखना, हियर बॉक्स का वेलोसिटी वाज 0, नाउ इट इज जस्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। हियर बॉक्स का वेलोसिटी वाज 0, हियर फाइनल वेलोसिटी इज 2, दिस फ्रिक्शन फोर्स अगेन इट विल बी हाउ मच? म्यू इंटू mg, मतलब जो एक्सेलरेशन दे रहा है फ्रिक्शन, दैट विल बी हाउ मच? म्यू इंटू जी। इतना एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, फाइनल वेलोसिटी इज गिवन, आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट? डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, राइट? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि इसके बाद रेलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 0, बोथ आर मूविंग टुगेदर। लेट्स से दिस लेंथ इज l, व्हाट विल आई डू? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये कर लेंगे, है ना? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज 4, है ना? 2 2 4 इक्वल टू u स्क्वायर इज 0 प्लस 2 इंटू a, एक्सेलरेशन कितना? म्यू इज 0.5, g इज 10, तो ये हो जाएगा 5। कितना आ गया ये? 5। तो 2 इंटू 5 इंटू l, डिस्प्लेसमेंट इज l, है ना? अब क्या आ रहा है देखो, 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा 2, तो l विल बी इक्वल टू 2/5, 2/5 इज नथिंग बट 0.4 मीटर। ठीक है? अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इंडस्ट्री में यूज होता है वो, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है, राइट? ग्रेट क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, and this point is very important. This question has been asked many times in many examination, that can friction force, the work done by friction force on a body, can it be positive? Yes, it can be positive. Force इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव, है ना? ग्रेट, चलो आगे बढ़ जाते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ध्यान से देख लेते हैं इसको। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? A heavy uniform chain lies on a horizontal tabletop. Very famous question, chain वाला प्रॉब्लम है, टेबल पे जो रखा होता है। If the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.25, then the maximum fraction of length, fraction का मतलब क्या होता है? चलो बताऊंगा मैं। Maximum fraction of length of the chain that can hang over one edge of the table. क्या बोल रहे हैं वो? एक टेबल है, इस पे कोई चेन ऐसे रखा हुआ है, राइट? दिस इज अ चेन। What is the maximum fraction of the length that can hang, है ना? That can hang if a chain has to remain on the table only. इसका एक डायग्राम देखो, you will be able to relate it. देखो ये वाला ध्यान से। So ये है, राइट? टेबल है and there is a chain placed like this. अब ये जो चेन का हैंगिंग पोर्शन है, ये वाला, this portion, it will have some weight, है ना? ये कुछ फोर्स लगाएगा mg, जो ये m कितना है? Not the total mass of the chain. This m is just hanging mass of the chain, क्योंकि इसी का वेट इस तरफ डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा एंड इट विल ट्राई टू ब्रिंग दिस चेन डाउन। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसे वेट जितना ज्यादा होगा, इट विल ट्राई टू ब्रिंग इट चेन डाउन ऑफ द टेबल, नीचे आ जाएगा चेन, है ना? बट वी हैव टू स्टॉप इट। कौन स्टॉप करेगा? हम या आप? फ्रिक्शन अंकल, है ना? फ्रिक्शन अंकल इसको स्टॉप करेंगे एंड ही विल अप्लाई अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो बेसिक थिंग इज, whatever is the weight of the hanging portion, friction force should be equal to that only, है ना? The maximum friction force, again friction की हालत खराब कर देनी है, राइट?
मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस वेट. ओके, अब देखो ध्यान से, ये यही चीज यहां पे लिखी हुई है, राइट. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द चेन लाइंग ऑन द टेबल शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द हैंगिंग चेन. चलो ये तो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा इसको सुन के, है ना. बट वी हैव टू कैलकुलेट थिंग्स, राइट. हमें तो आंसर देना है. तो आ जाता है मैथ्स पे. अब देखो व्हाट आई एम डूइंग इज, लेट्स से टोटल लेंथ ऑफ द चेन इज L. व्हाट इज L? टोटल लेंथ ऑफ द चेन, मतलब ये और ये दोनों इंक्लूड करके लेंथ L है. एंड लेट्स से टोटल मास ऑफ द चेन इज M, है ना. ये मास सिर्फ हैंगिंग वाला था, ये मास की बात नहीं कर रहा मैं, ये सिर्फ हैंगिंग मास की बात करी थी मैंने. टोटल मास यहां से लेके यहां तक इट इज M. वी डिफाइन वन प्रॉपर्टी नोन एज मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी. जब भी ऐसा कोई सीन होता है वी डिफाइन लीनियर मास डेंसिटी. लैम्डा, लैम्डा इज गिवन बाय टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ. ठीक है, केजी पर मीटर इसका यूनिट आ जाएगा. देखो ध्यान से, केजी पर मीटर, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ. दैट मीन्स इफ यू वांट मास of a particular section of a particular length, then just do this lambda into L. It will give you mass of that particular length. ठीक है, let's assume this hanging portion is x. ये जो hanging portion है उसका length कितना है? x. तो how much is the mass of hanging portion? mass h. mh का मतलब क्या है? mass of hanging portion. कितना हो जाएगा? देखो क्या सीखा अभी, lambda से length को multiply कर दो, you will get the mass of that portion. तो मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन इज लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ दिस हैंगिंग पोर्शन, दैट इज x. समझ में आ गया? अब देखना ध्यान से, टोटल लेंथ वाज L. अगर हैंगिंग पोर्शन का लेंथ इज x, तो इसका लेंथ कितना, विच इज ओवर द टेबल, L माइनस एक्स. वेरी सिंपल, L माइनस एक्स हो गया. अगर लेंथ इज L माइनस एक्स फॉर द चेन लाइंग ऑन द टेबल, तो इसका जो मास होगा, मास ऑन टेबल, mt का क्या मतलब है, मास ऑन टेबल, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स, है ना, लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स. अब हो गया प्रॉब्लम. देखो दिस मास विल क्रिएट दिस वेट, ये डिस्टर्बिंग फोर्स क्रिएट करेगा. हाउ मच इज दैट वेट और द डिस्टर्बिंग फोर्स? लैम्डा एक्स इंटू जी. यही है ना, वेट है ये क्या है? दिस इज द वेट, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, वेट ऑफ द हैंगिंग चेन, वो है वो. अब देखो फ्रिक्शन फोर्स इफ आई वांट हियर, इट विल बी मास ऑफ दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन टेबल पे रखा हुआ है ना, तो उस मास की वजह से फ्रिक्शन फोर्स आएगा. वी राइट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एम जी. ये कौन सा मास लिखो यहां पे बताओ, टोटल मास, हैंगिंग का मास, या टेबल वाला मास? टेबल वाला मास, राइट, बिकॉज दैट इज ऑन द टेबल एंड दैट विल क्रिएट अ नॉर्मल फोर्स, है ना. नॉर्मल फोर्स इसकी वजह से क्रिएट नहीं होगा, नॉर्मल फोर्स विल बी क्रिएटेड ओनली ड्यू टू दिस. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू, मास कितना है उसका देखो, लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी, मतलब कि वेट हो जाएगा, है ना. तो म्यू एम जी हो गया, और ये दोनों का आप इक्वेट कर दो. ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू द वेट. लैम्डा कैंसिल हो जाएगा यहां से, ओके, जी विल गेट कैंसल्ड आउट. यू विल गेट व्हाट, म्यू इंटू एल माइनस म्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स. इसको साइड चेंज करो तो आ जाएगा म्यू इंटू एल इक्वल टू एक्स प्लस म्यू इंटू एक्स, है ना. यहां से यू कैन जस्ट फाइंड आउट द x का वैल्यू, है ना. x का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एल, है ना, म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू, ऐसा आ जाएगा. म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू विल बी द आंसर ऑफ दिस. अब क्या मुझे म्यू दिया हुआ है, म्यू इज ऑलरेडी गिवन टू मी, राइट, म्यू ऑलरेडी गिवन. अच्छा ये x बाई एल आया ना, आई फॉरगॉट एल, x डिवाइडेड बाई एल की बात कर रहा हूं मैं, है ना. x डिवाइडेड बाई एल इफ यू विल डू, यू विल गेट म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू. करके बताऊं क्या कैसे आया, यू अंडरस्टूड दिस, राइट. म्यू एल इज इक्वल टू x बार ले लो 1 प्लस म्यू, तो x बाई एल क्या आ जाएगा, म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू. वाई आई एम कैलकुलेटिंग x बाई एल, बिकॉज ही हैज आस्क्ड फ्रैक्शन ऑफ लेंथ हैंगिंग. फ्रैक्शन मतलब कितना हैंग कर रहा है डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, तो ये वही तो है फ्रैक्शन ऑफ लेंथ हैंगिंग, है ना, x डिवाइडेड बाई एल, हैंगिंग लेंथ अपॉन टोटल लेंथ. म्यू की वैल्यू क्या हमें पता है, 0.25 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 0.25 अपॉन 1.25, आई थिंक दिस आंसर विल बी 0.2, और इसको फ्रैक्शन को इनटू 100 कर लेंगे तो यू विल गेट द आंसर इन परसेंटेज, है ना. तो आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा 20%. देखो ध्यान से, व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन, यस, ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. लास्ट में जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, प्लीज प्रैक्टिस दैट स्लाइटली, हो जाएगा क्वेश्चन. ओके, चलो गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज बहुत सारे क्वेश्चंस करे, है ना, अच्छे प्रॉब्लम्स भी करे बहुत सारे. सो फ्रिक्शन में आई होप यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी नाउ. प्लीज प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चन ऑन योर ओन
and 5 questions will be given by our side also, that will be updated in the app. Okay, so please go to app, वहां से प्रैक्टिस करो, that will be your homework. ठीक है, and again please download the app, that will be very useful. Like, share and subscribe. लाइक करना मत भूलना अगर पसंद आया वीडियो. ओके, चलो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. साइनिंग ऑफ.